Hello students, today we are going to study about Alexander Pope. We already have completed John Milton. Okay, we have completed on his blindness and when the assault was intended to the city, and today we are going to start Alexander Pope. Okay, you can see in the slide how Alexander Pope look like. Okay, it's very important that we should know the writer. Okay, he belongs to new classical age, and this age is also called Augustan age. This age is also called age of reason, and it is also called age of enlightenment. Okay, so when you are going to write the introduction of Alexander Pope, you should mention all these, right? That this age is also called Augustan or age of reason or age of enlightenment. Okay, so this neoclassical age, it was the age after the restoration. Okay, restoration is something when you can say anarchy or the kingship, it was restored in England. So whatsoever we are when we study, when we say English writer, we mean that it is the writer of England. Okay, so Alexander Pope basically belonged to 18th century. So whenever you will mention that in which century Alexander Pope belong, you will say that he belongs to 18th century in English literature, which is also known as Augustan age, okay, or age of reason or age of enlightenment. So when we see division, this division is, the period is 1700 to 1798. You have already studied that. Okay, all the poetry you see, it has a sequence. First of all, you have studied William Shakespeare. Okay, this was the writer of Elizabethan age. Then you have studied John Donne. Okay, then John Milton, and now Alexander Pope. So you can see the sequence. These are the writer who belong to certain age, like John Milton, he belonged to Puritan age. Okay, it was the time period before restoration age. So it has a pattern, right, in your syllabus. There is a pattern in your syllabus. So we are going to study about Alexander Pope. Okay, let's see the next slide. Okay, now we will talk about life and works of Alexander Pope. Okay, so Alexander Pope, he was an English poet, critic, and satirist. He was born on 1688 in Lombard Street, London. Okay, he was educated largely at home. Okay, कि उसे एजुकेशन जो उसकी बेसिक एजुकेशन है वो घर पे ही हुई है. वाई इट वॉज सो? बिकॉज ही वॉज अ कैथोलिक. ओके, ही वॉज अ कैथोलिक. एक डिवीज़न होता है कि कुछ जो क्रिश्चियंस होते हैं वो कैथोलिक होते हैं, कुछ होते हैं जो प्रोटेस्टेंट होते हैं, राइट. एंड ही वॉज अ कैथोलिक. सो बोथ हिज पेरेंट्स वर कैथोलिक्स, so he was Catholic, and because he was Catholic, he was banned from teaching. Okay, he cannot study in the regular schools, so he was excluded from the public education, and so he was educated largely at home. And it was this period when he learned Greek, Latin, right. He know lots and lots of languages. He was very intelligent. Okay, so in 1700, what he has done, he has when his family it moved to Binfield in Windsor Forest, okay, where he started the rigorous self education. एकदम वो डेडिकेशन के साथ उसने जो है पढ़ाई स्टार्ट अपनी कर दी, और इतनी ज़्यादा रिगोरस वो पढ़ाई थी दैट इट अंडरमाइंड हिज हेल्थ, क्योंकि उसकी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा डिटोरेट हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई. सो ही कॉन्ट्रैक्टेड द फर्स्ट सीरीज ऑफ इलनेस. बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस उसे होने लगी. फिज़िकल इलनेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी दैट ही वॉज डीफॉर्म. डीफॉर्म मतलब क्या होता है कि उसकी जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गई, राइट. कि आप इस तरीके से लीजिए कि उसकी ग्रोथ रुक गई. इतना ज़्यादा उसने खुद को पढ़ाई में, स्टडीज़ में इन्वॉल्व कर लिया दैट इलनेस से वो स्ट्रिक्ट हो गया. ही
He was seriously ill, and due to that he acquired a physical deformity. He was only 4 feet 6 inch tall. Okay, because why did that thing happen? Because there was कैर्वेचर इन हिज स्पाइन. ठीक है, उसकी जो स्पाइन होती है वो थोड़ी सी क्या हो गई थी, डिफॉर्म हो गई थी. दैट्स वाई उसकी जो हाइट है वो 4 फीट से ज़्यादा नहीं बढ़ी. और इस वजह से क्या हो गया, ऑब्वियसली जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो एकदम डिफॉर्म हो गया है. तो क्या होगा, वो क्या करेगा, घर पे ही वो लॉक कर लेगा खुद को फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. ओके, एनीवेज, फिजिकल लेकिन डिफॉर्मिटी it does not stopped him, right? And after that he has involved himself with studies, and he started composing. So he, first of all, he has composed pastorals, right? It was published in the Poetic Miscellanies. Okay, it was 6th part of Tonson's Poetical Miscellanies. And it was this year when an essay on criticism was published in May 1711, and it has established his reputation. His reputation was established. He became known. And another very well known mock heroic epic he has written, The Rape of Lock, 1712. Okay, so there is an important club he has established. It is called Scribblers Club. Okay, he, along with Jonathan Swift, John Gay, John Arbuthnot, and Thomas Parnell, they founded a literary club called Scribblers Club. Okay, so this is a little detail about Alexander Pope. Now we'll see the next slide. Okay. Now I have written some literary feature of the age. What was the age all about? Why Alexander Pope has written all those things? It is very important that we should study, alright, the literary feature of the age, the certain age to which a writer belong, to which a poet belong. ये जानना बहुत ज़रूरी है that why a certain poet has written whatsoever he has written, what is the background. Okay, so what was the literary feature of the age? That poets used to imitate the ancient Greek and Roman writers. इसीलिए वो टर्म है अगस्टन एज, राइट, कि वो जो अगस्टस थे, ठीक है, इनको क्यों बोला जाता है क्लासिकल, नियो क्लासिक्स? दैट्स वाई बिकॉज जो राइटर्स हैं दे स्टार्टेड लुकिंग बैक टू द आइडल्स एंड आर्ट फॉर्म ऑफ क्लासिकल टाइम. ओके, क्लासिकल टाइम्स के जो आर्ट फॉर्म्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे, उनको कॉपी करने लगे. ओके, उनके जो राइटिंग स्टाइल है उसे कॉपी करने लगे. तो इस एज की जो लिटरेरी फीचर होगा या राइटिंग स्टाइल होगा वो कैसा होगा? बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होगा एंड फॉर्मल होगा, राइट, फॉर्मल राइटिंग. एंड देयर इज़ एन एलिगेंट वे ऑफ राइटिंग. बहुत एलिगेंटली वो लिखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन इमेजिनेशन. ओके, उनका इम्फोसिस किस चीज़ पे होगा कि चीज़ें बहुत फॉर्मल हो, राइट, स्ट्रक्चर, उसका एक स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द जो है उनकी पोइट्री हो. बात उस पर नहीं है कि वो क्या कंपोज करें, बट व्हाटसोएवर दे आर कंपोजिंग उसका एक फॉर्म होना चाहिए. ओके, सटायर, ये एक लिटरेरी फीचर है कि सटायर बहुत ज़्यादा लोग करने लगे थे. ओके, सटायरिकल राइटिंग, वो जो अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ लॉक है, इट इज़ इन सटायरिकल वर्स एंड प्रोज ऑल्सो. तुमने बेकन को पढ़ा था, बेकन का प्रोज राइटिंग स्टाइल देखा था, राइट. वो जो प्रोज राइटिंग स्टाइल वो करा करता था वो थोड़ा थोड़ा सटायरिकल था, राइट. वो क्या करते थे, डिडेक्टिक भी था एट द सेम टाइम बट सटायरिकल ऑल्सो. ओके, ट्रांसलेशन भी होने लगे थे इस टाइम पे. जितने भी क्लासिकल टेक्स्ट थे ऑब्वियसली ट्रांसलेशन होगा, राइट. नेचर वॉज एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस. नेचर बहुत एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस था ऑन अगस्टिन राइटर्स.
अब नेचर से ये नहीं जैसे कि रोमांटिक्स करते थे दैट नेचर वॉज अ डीपर थीम और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइट्री ऑफ रोमांटिक्स, बट रादर नेचर, व्हेन दे से नेचर, nature means men and manners of society. Okay, so they examine the enduring truth of human nature. कि ट्रूथ ऑफ ह्यूमन नेचर क्या है उस चीज़ को एग्जामिन वो किया करते थे. तो यही चीज़ हम ऐसे ऑफ क्रिटिसिज्म में हम देखते हैं दैट Alexander Pope has once stated, first follow nature and your judgment framed by her just standard which is still always the same. Okay, so nature was an important influence of the age, and at the same time important writers जो है जोनाथन स्विफ्ट को हमने देखा जब वो क्लब में एक साथ काम कर रहे थे. डेनियल डिफोई जो था इम्पोर्टेंट राइटर था, एंड देयर वर मैनी. ओके, तो फिर अब हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं. हाँ, तो जो हम टेक्स्ट जो हम देख रहे थे, हमारा जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है तुमने देखा होगा, अगर टेक्स्ट तुमने सामने खोला हुआ है तो टेक्स्ट इट्स कॉल्ड द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन. सो दिस इज जस्ट अ फ्रेगमेंट, ओके, जस्ट अ पार्ट of the long poem Essay on Men. It is just a small part. This Essay on Men, see, you can see here it is written essay. It is not an essay, it is a verse. Okay, verse, or we can say poem. Title थोड़ा confusing है, that you may say that it is an essay on men, but it is not essay, it is a poem, right? So this poem, it is didactic poem in heroic couplet. It is written in heroic couplet. Okay, couplet हमने देखा था. couplet क्या होता है कि couplet जो कोई भी जो दो लाइन जो एंड में है राइम कर रही है. ओके, पोएम में तुम थोड़ा देखो. know then thyself, presume not God to scan, proper study of mankind is men. यू कैन सी स्कैन एंड मैन, ये जो दो हैं आपस में राइम कर रहे हैं, तो ये क्या है, कपलेट है. सो दिस पोएम इट वॉज पब्लिश इन 1734 एंड इट इज़ रिटन इन 4 epistle. एंड येस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ डेडिकेटेड टू हेनरी सेंट जॉन. ऑलराइट, ये डेडिकेशन है, ये भी तुम लिख लो. ये थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो तुम क्या कर सकते हो जब लाइन्स आएंगी वर्सेस में, या फिर आप क्या कर सकते हैं जब आप क्रिटिकल कमेंट्स लिखेंगे तो उसमें ये चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, ये थोड़ी सी इसकी बायो है. ओके, लेट्स कम अपॉन टेक्स्ट. हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा हम एक पैरा हम कर लेते हैं आज. उसके बाद अगर कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो तुम मुझसे पूछ लेना, राइट? और वही चीज़ बस कमेंट में पूछनी है. एंड जो भी लोग कमेंट करेंगे इट विल बी काउंटेड एज अटेंडेंस, राइट? जस्ट मेक श्योर कि कौन कौन तुम लोग प्रेजेंट हो, उसी हिसाब से तुम लोग की अटेंडेंस लगेगी. ओके, सो लेट्स स्टडी इट. द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज, oh God, okay, the proper study of mankind is men. Okay, टाइटल आप देख रहे हैं, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन. कि मैनकाइंड की जो प्रॉपर स्टडी होती है वो कौन हो सकती है, मैन ही हो सकता है. अब देखो, मैन यहाँ पे यूनिवर्सल टर्म है. ओके, दिस इज़ अ यूनिवर्सल टर्म. अब ये कोई हो सकता है कि यहाँ पे मैन क्यों लिखा है, यहाँ पे वुमेन क्यों नहीं लिखा हुआ. तो दिस मैन इज़ अ यूनिवर्सल टर्म. यूनिवर्सल टर्म से क्या मतलब होता है, दैट इट मेंट ह्यूमन में भी मैन और वुमेन, राइट? तो यहाँ पे जो मैन लिखा हुआ है ये एक यूनिवर्सल टर्म है, जिसका मतलब ये दोनों जेंडर्स के लिए है, एक ह्यूमन बीइंग के लिए है. दैट अ प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, अ प्रॉपर स्टडी विच कैन बी डन अबाउट मैनकाइंड इज मैन इटसेल्फ. ठीक है, ह्यूमन के बारे में यानी खुद को जानना ही आपकी जो प्रॉपर स्टडी है. अब हम देखते हैं, नो देन दाई सेल्फ. ओके, ये यू कैन जस्ट सी दैट ये फ्रेगमेंट है, राइट? ये पूरे देन यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे देन. ओके, तो इससे ही, इस देन से ही पता चल रहा है कि ये जो टेक्स्ट है ये बीच का है. ओके, तो ये जो टेक्स्ट है इट इज़ टेकन फ्रॉम एसे ऑन मैन, एंड दिस
These lines are taken from Epistle Second. Okay, this essay on man, it is written in 4 epistles. There are 4 epistles. Epistle क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है epistle. तो ये जो epistle है ये सेकेंड epistle है. Know then thyself, presume not God to scan. Proper study of mankind is man. So he is saying, देखो ऊपर उसने कुछ और चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करी होगी, and then he is saying here that you should know thyself. Thy means होता है you. You should know yourself and you should not presume God to scan. Presume करना, taking for granted. ओके तुम ये मत मानो या ये मत सोचो दैट गॉड विल स्कैन यू, गॉड विल एनालाइज यू और गॉड विल जज यू. द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन. सो what the poet is trying to say here, that you should know yourself. Do not wait for the God to give you judgment, to provide you judgment. You should know yourself. And do not think that God will examine you or God will criticize you. The proper study of mankind is men. Okay, proper study जो mankind की हो सकती है वो क्या है? Men ही है. Okay, ठीक है, इसमें कोई confusion नहीं है. Placed on this isthmus of a middle scale. Placed on this isthmus of a middle state. Isthmus, देखो isthmus क्या होता है? Isthmus आप ये सोच सकते हैं कि एक तरीके से small piece of land जो क्या कर रहा है, which is jointing two large piece of land. ओके, यानी कि छोटा सा एक जो अर्थ का आप एक तरीके से टुकड़ा सोच लो जो बड़े 2 लैंड्स को जोड़ता है, दैट इज isthmus. जो ज्योग्राफी के बच्चे हैं दे कैन अंडरस्टैंड isthmus क्या होता है. अब देखो वो क्या कह रहा है कि वी आर प्लेस्ड इन द मिडिल स्टेट. ओके, ये एक मिडिल स्टेट है. ओके, ऊपर वाली लाइन में ही सेइंग दैट मैन शुड स्टडी हिमसेल्फ रादर देन स्टडिंग anyone else or rather than doing anything else. He should study himself. अब वो कहता है placed in the middle position is man. यानी कि अर्थ में, अर्थ के जो बीच में, ठीक है, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो राउंड करती है किसके इर्द गिर्द? मैन के इर्द गिर्द. मैन जो है एकदम सेंटर में है. गेटिंग इट? ये पोजीशन की बात हो रही है कि मैन एकदम सेंटर में है. ही इज प्लेस इन द मिडल ऑफ अर्थ. ही इज इन मिडल. ओके, ही इज नाइदर इन द लोअर वर्ड ऑफ वाटर नॉर इन द अपर वर्ड ऑफ एयर, बट ही इज वेयर? ही इज ऑन अर्थ. isthmus में वो स्टेट है, नहीं अर्थ में है, ना वो पानी में है ना वो एयर में है. राइट, वो कहाँ पे है? एक मिडल में है. मिडल कहाँ पे है? अर्थ. ओके, a being darkly wise and rudely great. Darkly, देखो डार्क मतलब क्या होता है? डार्क होता है, आप एक तरह से कह सकते हैं ब्लैक को बोलते हैं कि डार्क. राइट, कि डार्क. अब यहाँ पे जो डार्क है, अब डार्क बेसिकली आप क्या करते हैं? कलर को ही कहते हैं. ब्लैक जो है एक डार्क कलर है, लेकिन यहाँ पे जो डार्क है, डार्कली से क्या मतलब है? दैट ही इज़ फुल ऑफ सीक्रेट्स. He is full of secrets. He is being a darkly wise and rudely great. Right? कि वो कैसा है? Man, he is a man who is deeply wise, darkly wise and rudely great. Okay? तो यहाँ पे मैन को सेंटर में रखा गया है एंड ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज कि जो मैन है, ही शुड स्कैन हिमसेल्फ. राइट, ही शुड नो हिमसेल्फ कि वो क्या है, खुद क्या है, मैनकाइंड कौन है. ठीक है, इस चीज़ को स्टडी करने की यहाँ पे बात हो रही है. फिर वो उसी चीज़ को स्टडी करते हुए आगे बताता है चौथी लाइन में दैट मैन क्या है? ही इज़ डार्कली वाइज, रूडली ग्रेट. ओके, तो ये जो ओपनिंग स्टैंजा है ये क्या बताता है? ही इज़ जस्ट शोइंग द एटीट्यूड
टूवर्ड्स मैन। ओके, तो पोप क्या यहाँ पे कहना चाहता है कि मैन शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, राइट, ही शुड नो हिमसेल्फ, ही शुड नॉट वेट फॉर द गॉड टू गिव criticism or justice to him. He should not wait for God to scan him or analyze him. He should just self-analyze oneself. Okay? अब आगे हम देखते हैं, with too much knowledge for the septic side. See, अब septic कौन होता है? Septic is a person who doubt the truth of particular क्लेम थ्योरी। यानी सेप्टिक वो होगा जो क्या करेगा, अगर आप कुछ उसको बोल रहे हैं तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को डाउट करेगा, यू नो, उसको पहले जज करेगा, एनालाइज करने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली ये कौन कर सकता है, जिसके पास नॉलेज होगी, राइट। विद टू मच नॉलेज फॉर द सेप्टिक साइड, विद टू मच वीकनेस फॉर अ स्टोइक, प्राइड। अब स्टोइक कौन है? देखो दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। स्टोइक कौन होता है? स्टोइक इज़ अ पर्सन जिसे क्या लगता है कि पेन और जो प्लेजर है वो इक्वल है। स्टोइसिज्म, इट इज़ अ थ्योरी, ठीक है। सेप्टिक होना, स्टोइक होना, तो जिसके पास बहुत नॉलेज होती है वो सेप्टिक हो जाता है, बिकॉज ही स्टार्ट डाउटिंग एवरीथिंग। हर चीज़ की एग्जिस्टेंस पे उसे डाउट होने लगता है, कोई भी चीज़ वो इजीली नहीं मानता, उसे हर चीज़ में क्या करना है, उसे जानना है, ठीक है, कि ही हैज़ टू मच नॉलेज टू बी अंडरस्टूड बाय अ सेप्टिक, ठीक है। तो मैन को वो कहना चाह रहा है कि दैट मैन इज़ अ मिस्टीरियस क्रिएचर, ही कैन बी अंडरस्टूड नाइदर बाय अ सेप्टिक नॉर बाय अ स्टोइक। कि मैन जो है ना बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, इतना ज़्यादा मिस्टीरियस कि ना ही सेप्टिक उसे समझ सकता है ना ही स्टोइक उसे समझ सकता है। गेटिंग इट? कि मैन देखो सेंटर में है, हाउ ही इज़ मिस्टीरियस। मिस्टीरियस जो चीज़ है हमें कैसे पता चलती है? डार्कली वर्ड से, दैट ही इज़ हाइडिंग सीक्रेट्स, ओके। ही इज़ रूडली ग्रेट एंड ही इज़ इंटेलिजेंट। इतना ज़्यादा ही इज़ मिस्टीरियस, इतना ज़्यादा दैट इट कैन नाइदर बी अंडरस्टैंड बाय अ सेप्टिक। सेप्टिक कौन था? सेप्टिक कौन है? जो क्या है? एक ऐसा पर्सन जो किसी भी ट्रूथ को इजीली नहीं मानता। नाइदर अ मैन कैन बी अंडरस्टूड बाय स्टोइक प्राइड। स्टोइक इज़ द वन जिसे क्या है, पेन और प्लेजर में कोई डिफरेंस पता नहीं है, ओके। ही हंग्स बिटवीन इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट। अब देखो जो मैन है वो सेंटर में खड़ा है, राइट। ही इज़ हैंगिंग बिटवीन डाउट टू एक्ट और रेस्ट। उसे नहीं पता, ठीक है, ही इज़ इन सेंटर, उसे डाउट है हर चीज़ का कि क्या उसे एक्ट करना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए या फिर उसे एक्शन नहीं लेना चाहिए। जैसे हैमलेट की एक बड़ी फेमस लाइन है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। शेक्सपियर ने जो लिखा है हैमलेट, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, दैट आई शुड एक्ट और आई शुड नॉट एक्ट। तो ये क्या है? डाउटसम सिचुएशन है कि वो डाउट में है। Sometime he is in doubt to act, sometime he does not act at all and he rest. At time he is quick to act, and at a time he is fixed to act or not to act. So this is a practical aspect of life that human जो होता है, man जो होता है वो क्या है? बीच की स्थिति में है, ठीक है, सेंटर में वो है। अब उसे उसे समझना है किसे? खुद को ही। मैन शुड नो दाई सेल्फ, खुद से ही उसे खुद को समझना है। ही इज़ वे टू इंटेलिजेंट फॉर अ सेप्टिक टू एनालाइज, ही इज़ टू वीक, राइट, ही हैज़ वीकनेसेस दैट अ स्टोइक कैन नो अ पर्सन। स्टोइक देखो क्या होता है, इनको एक तरीके से तुम सोचो जो हर्मिट्स होते हैं, साधु जो होते हैं, स्टोइक वो होते हैं, उन्हें पेन और प्लेजर में कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। उनके लिए क्या है? पूरी जो दुनिया है, ओके, हर चीज़ ठीक है, चाहे किसी के दर्द से उन्हें कोई मतलब नहीं है,
किसी के पेन से उन्हें कोई मतलब नहीं, किसी की हैप्पीनेस से उन्हें कोई मतलब नहीं है. ओके, सो जो मैन है ही इज़ हैंगिंग बिटवीन. ठीक है, तो जो इंसान का यानी पर्सन का एक मिस्टीरियस बिहेवियर है उसे डिपिक्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है राइटर. ही, अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ अ गॉड और बीस्ट. ओके, अब वो क्या है, डाउट में है. वो क्या डाउट में है, दैट ही इज़ ए गॉड और ही इज़ अ बीस्ट. गॉड और बीस्ट से क्या मतलब है, दैट ही इज़ अ गुड पर्सन और ही इज़ अ बैड पर्सन. ओके, वो क्या है तुम देख रहे हो ना, तो वो सेंटर में है. ही इज़ इन डाउट्स कि उसे एक्ट करना चाहिए या उसे एक्ट नहीं करना चाहिए, वो एक गुड पर्सनैलिटी है या फिर वो एक बैड पर्सनैलिटी है. इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर. ओके, तो वो क्या है, ही इज़ प्लेसिंग हिमसेल्फ बिटवीन गॉड एंड बीस्ट बिकॉज ही इज़ नॉट श्योर अबाउट हिज ओन नेचर. ओके, उसे नहीं पता कि आइदर आई एम गॉड लाइक और आई एम बीस्ट लाइक. ठीक है, और ये जो दोनों इंस्टिंक्ट जो होते हैं ये इंसान के अंदर होते हैं, राइट, कि इंसान या तो गॉडिश होता है या बीस्ट होता है. ठीक है, ये दोनों एलिमेंट एक इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर होते हैं, बट जो ह्यूमन जो एक्ट करता है वो इन दोनों का मिला हुआ रूप होता है. ओके, इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर. ठीक है, अब क्या है, अब वो अपनी माइंड और बॉडी में किस चीज़ को प्रेफर करे, इस चीज़ में भी उसे डाउट है. ठीक है, तो ही इज़ व्हाट, ही इज़ अ क्रिएचर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन का है कि वो नॉलेजेबल है या फिर वो इग्नोरेंट है. सेप्टिक एंड स्टोइक की हमने बात करी थी. वो फिर कंफ्यूज्ड है दैट ही शुड एक्ट और ही शुड नॉट एक्ट, ही शुड रेस्ट. एंड हाउ my nature is, how I am I goddess or I am beast. He is in doubt between his mind और his body to prefer. किस चीज़ को preference देनी चाहिए, that I should prefer my mind or my body. He had the quality both of angelic, ठीक है, angel like and beast like, दोनों तरह की quality उसके अंदर है. He is lost so much. Okay, born but to die and reasoning but to err. err का ये पहले भी आ चुका है. err का मतलब होता है mistakes. To commit mistake is to err. Okay, तो वो क्या कहता है, that he is lost so much in material pursuit that he forget he is born but to die. Getting it, understanding this line, that he is born but to die. ठीक है, अगर किसी ह्यूमन का अगर बर्थ हो रहा है तो अल्टीमेटली उसे उसकी डेथ भी आनी है, राइट, उसको डेथ भी आनी है. ही इज़ बोर्न बट बेसिकली फॉर व्हाट, फॉर डाइंग. बट ह्यूमन क्या करते हैं, ये चीज़ भूल जाते हैं. he thinks that he is born but not to die. Okay, अब यहाँ पे राइटर कहना चाह रहा है कि he has reasoning. देखो रीजनिंग का क्या मतलब है कि रैशनल होना, कि उसके अंदर तर्क करने की एबिलिटी है. ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके से क्या है कि ह्यूमन जो है एक रैशनल बीइंग है बट एट द सेम टाइम ही इज़ कमिटिंग मिस्टेक्स. ओके, रीजनिंग बट टू अर्र, कि ही हैज़ रीजनिंग, ही हैज़ माइंड, but at the same time he is committing mistake. All right, so this is one paragraph we have completed. Just make sure कि तुम क्या समझ में नहीं आ रहा, just comment there. Okay.